ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کی خیت خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خیت، مدینے کے خیت خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خیت خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بول تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، کوئی لب خاموشوں میں کہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں چلے جانے والے، بڑے خاک بولے ساتھ میں چھوٹی چھوٹی کلپیں چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے، شافی و نافی ہو تم، کافی و معافی ہو تم، میرے درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود دی کرو ٹھنڈا میرا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا میرے سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود یہ چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کا تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا
ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے گے چندرانے وال آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تو کہتا ہے نیند ہے پیاری تیری مت ہی نرالی ہے سونا پاس ہے سونا بن گئے سونا زہر گئے اٹھ پیارے تو کہتا ہے نیند ہے پیاری تیری مت ہی نرالی ہے کہاں تم نے دیکھے گے چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے گے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکان والے رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو غوث العظم اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں غوث العظم ہو غوث الورا ہو غوث العظم ہو غوث الورا ہو نور ہو نور صلی اللہ ہو کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو دستگیر اور مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو غوث العظم آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہیں ہاں ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں ہر سزا کا سزاوار ہوں میں ہر سزا کا سزاوار ہوں میں میرے چاروں طرف ہے اندھیرا میرے چاروں طرف ہے اندھیرا روشنی کا
سج کر جلا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں جالیوں پر نگاہیں وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم جب پکاریں گے یا غوث اعظم کیونکہ پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں بلانا ہم نہ چھوڑیں گے تو وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوث اعظم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جالیوں پر نگاہیں اور اس کلام کا ایک شعر جو ہے وہ ہم اپنے وطن میں پڑھا کرتے تھے تصور میں حضور کی بارگاہ میں غوث پاک رضی اللہ عنہ دربار کو تصور میں لایا کرتے تھے آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم آپ کے در دولت پر حاضر ہیں اللہ رب العالمین ہماری حاضریاں قبول فرمائے اور ہمیں فیضان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالا مال فرمائے آئیے اس شعر کو سنتے ہیں فرماتے ہیں کہ فکر دیکھو فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو یہ تیرا کرم ہے یا باس جو بلا لیا در پر کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں آستاں تمہارا اور یہ تیرا کرم ہے یا جو بنا لیا گے اپنا کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو سامنے کیسی ہے ذات دیکھو اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں صلو علی الحبیب
سیدی اعلیٰ حضرت کرام کا دیکھیں ایک بڑی اہم بات میں آپ کو عرض کر دوں، دعوت اسلامی کا یہ انداز نہیں ہے جو یہاں انداز رکھا گیا ہے۔ ہمارے یہاں اگر اسلامی بہنیں ہوتی ہیں تو وہ پورے پردے میں ہوتی ہیں۔ اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس طرح مردوں کے ساتھ اختلاف کر کے نہ بیٹھیں، کچھ پردے لگائے گئے ہیں وہاں بیٹھ جائیں، اور اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو اپنا رخ پیچھے کی طرف کر لیں، اور آپ سارے اپنے کیمرے بند کریں۔ آپ جب کیمرے موو کرتے ہوں گے تو پیچھے ہماری بہنیں بیٹھی ہیں تو ان کی مووی بھی بن جائے گی، ایسا نہ کریں۔ اور میں اپنی اسلامی بہنوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کی سننا چاہتی ہیں تو آپ پردہ لگائیں یہاں پر، یا پھر آپ الٹا بیٹھیں۔ یہ درست نہیں ہے اس طرح اجتماع میں آنا، اور نہ یہ انداز ہے دعوت اسلامی کا۔ برائے کرم اس کو اختیار کریں اور اس کا ضرور خیال کریں۔ اپنے کیمرے بالکل موو نہ کریں، پیچھے کی طرف نہ کریں، اور ماشاءاللہ سب اس پردے کے پیچھے چلیں۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ داری ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مگر کب سے نقاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مگر کب سے نقاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو، ہاں انہی کی کرم ہے، انہی کا چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں۔ بولو انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے ہاتھ بڑے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر، کیونکہ منگتوں کو سلطان بنایا،
میرے پیارے آقا نے جب اپنا دربار لگایا، میرے پیارے آقا نے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گے ہاں کل بڑے خزانے، بتا اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں ہے، اٹھا تو پردہ دکھا دو، اور کریم اپنے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بالخصوص ہند سے آنے والے عاشقان رسول، علماء کرام، پیران عظام، مفتیان کرام، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ قبلہ مفتی نسیم مصباحی صاحب اور دیگر علماء کرام، مفتیان کرام اور پیران عظام کے ساتھ یہ بیٹھنے کا شرف ملا ہے۔ چند مدنی پھول جس مبارک بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، جس مبارک شہر میں ہم حاضر ہیں، اس نسبت سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم ہم سب کو صحیح طریقے سے ادب کے ساتھ بیٹھ کر سننے کی سعادت نصیب فرمائے اور آج کے اس اجتماع کی برکت نصیب فرمائے۔ یہاں میں ایک نیت اور کروانا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہم بڑی وقت نکال کر نیتوں کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کسی اجتماع میں جاتے ہیں، لیکن جب ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون ہوتا ہے، ہم کلپ بناتے ہیں تو ہماری ساری توجہ اس میں رہ جاتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اب کافی آپ نے کلپ بنا لیے ہیں، اب آپ اپنے موبائل بند کیجئے اور توجہ مختصر وقت ہے بیان کی طرف رکھیے، تاکہ جو ہم سیکھنے آئے ہیں، جو میں پیغام لے کر آیا ہوں، وہ پیغام آپ اپنے دلوں کے مدنی گلدستے میں سجا سکیں۔ ماشاءاللہ اس کے بعد پھر یہاں دعا ہوگی۔ یقیناً یہ مبارک راتیں، مبارک گھڑیاں ہیں، نصیب والوں کو اس شہر کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا تھا اور سوچتا ہوں کہ ہم جو قادری ہیں، ہم جو غوث پاک کے ماننے والے ہیں، اگر ہم اپنے شجرے کو پڑھیں
तो शजरे में कितने बुजुर्गान दीन हैं कि जो यहाँ मौजूद हैं, जिनकी किताबें पढ़ते हैं, जिनके नाम सुनते हैं, या कौन नहीं है। आप जरा सोचिए कि कितने बड़े बड़े औलियाए किराम के दरमियान हम यहाँ मौजूद हैं। हम जिनके पैरोकार हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, वो यहाँ हैं। तरीक़त के इमाम आज़म सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहाँ हैं। अगर हम तसव्वुफ की बात करें तो तसव्वुफ के इमाम गज़ाली यहाँ हैं। यानी कौन सा ऐसा नाम, अगर तसव्वुफ के बड़े इमाम की बात करें तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह यहाँ, जिनका नाम खास तौर पे जो दावत इस्लामी के इस्लामी भाई हैं, हम अपने शजरे में पढ़ा करते हैं, हज़रत मारूफ खरखी, हज़रत सरी सकती, ये सारे हमारे मशाइख हैं और किस कदर बड़ी हस्तियाँ हैं। और फिर सुभान अल्लाह, करबला जाएँ तो नवासा रसूल यहाँ हैं, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम नजफ़ अशरफ में मौजूद हैं। तो ख़ास रहमतों के नुज़ूल की जगह है। तो हमें इन जगहों पर बड़ा बाअदब रहना चाहिए, बड़ा फोकस होना चाहिए कि हम अपना हर हर लम्हा यहाँ इबादत में गुजारें और इनके फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल हों। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, इन बुजुर्गों के रोज़ों का दीदार, इनके मज़ारात का दीदार अता किया है, कि मेरे मालिक हमें इनका ख्वाब में दीदार भी नसीब फरमा। रब्बे करीम हमें इनसे बड़ी मोहब्बत है, क़यामत के दिन इनका साथ नसीब फरमा, हमारा हशर इन बुजुर्गों के साथ फरमा और इनके पीछे जन्नत में जाना नसीब फरमा। तो जितने दिन जिसके पास हैं, यहाँ आपके पास जितने भी दिन हैं, आप बराहे करम इन दिनों को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में, दुरूद पाक में बाअदब रहकर तिलावत कुरान में गुजारें, ताकि इन मज़ारात मुक़द्दसा का आप खूब फैज़ान लेकर जाएं। खाने पीने, सोने के लिए, शॉपिंग के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है, यहाँ हो सके तो अपने एक एक लम्हे को इबादत में गुजारें। बहरहाल दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मज़मून है कि जो कोई शख्स क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन आका फरमाते मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े हों। अब जरा क़यामत के दिन के बारे में सोचिए। क़यामत का दिन ये सबसे ज्यादा मुश्किल दिन होगा और उस दिन एक ही हस्ती है जिसने काम आना है। वहां माँ भी काम नहीं आएगी, बाप भी काम नहीं आएगा। यहाँ बहुत सारे दोस्त अहबाब हमारी तकलीफ में हमारे साथ खड़े होते हैं, वहाँ किसी ने काम नहीं आना, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। आशिकों के इमाम, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान रहमतुर रहमान फरमाते हैं ना, काम किसने आना है, कहाँ पर, कि जहाँ माँ भी छोड़ जाएगी, बाप भी छोड़ जाएगा। माँ जब इकलौते को छोड़े, आ आ कह के बुलाते ये, बाप जहाँ बेटे से भागे, लुत्फ वहाँ फरमाते ये। बड़ी प्यास लगेगी। आप सोचिए ना, हमारे हिंदू पाक में रमजान आजकल जून जुलाई में आ रहा है, 40-45 डिग्री में हमारी बस हो जाती है, इफ्तार तक तो हाल बुरा हो जाता है। ठीक है, 40-45 डिग्री और 14-15 घंटे का रोजा हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कयामत का दिन 15 घंटे का नहीं होगा और 45 डिग्री टेम्परेचर नहीं होगा, सूरज 1.25 मील पर और दिन 50,000 साल का होगा। कितनी प्यास लगेगी, कभी सोचिए। ज़बानें बाहर आ जाएंगी, लोगों के हलक खुश्क हो जाएंगे, इतना पसीना बहेगा, किताबों में लिखा कि बंदा पसीने में डुबकियां खा रहा होगा। मगर वहां एक ऐसा जाम मेरे आका को अता किया गया, एक ऐसा हौज है नबी पाक का कि जिसके बारे में हदीस के अल्फाज हैं, शरबतन हनीअतन मरीआ ला नगबाउ बादहु अबदा। मेरे आका का वो जामे कौसर है कि एक बार पी लेगा उसे कभी प्यास ना लगेगी। और कौन पिलाएंगे? ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये। अब जरा सोचिए कि जो भी मुश्किल है क़यामत के दिन, मेरे आका वो हैं जो मुश्किलों के हल करने वाले हैं। उस दिन नबी पाक के सबके परेशानी दूर होगी। तो अब क़यामत के दिन जो नबी पाक ही के करीब हो जाएगा तो मुश्किल अल्लाह ने चाहा आसान हो जाएगी। प्यास लगेगी तो आका जामे कौसर पिला देंगे, पुल सिरात से गुजरना होगा तो नबी पाक गुजार देंगे। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अपना मामूल बनाएं कि चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ें, अपना वजीफा बनाएं। और सुभान अल्लाह, हमारे अमीर अहले सुन्नत ने बड़ा प्यारा हदफ हर ज़ाहिर बगदाद को दिया है कि रोजाना कम से कम 1100 बार दुरूद पाक पढ़ें। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें कि जब तक यहाँ है रोजाना 1100 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब तक कुछ माइक ठीक हो रहा है, मिलकर दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मिलकर
محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का तारा नाम मुहम्मद दिल का उजाला नाम मुहम्मद आँखों का तारा नाम मुहम्मद दिल का उजाला नाम मुहम्मद आँखों का तारा नाम मुहम्मद दिल का उजाला नाम मुहम्मद आँखों का तारा नाम मुहम्मद दिल का उजाला नाम मुहम्मद अपने जमीले रज़वी के दिल में अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु जी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इंशाअल्लाह मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि रोजाना कम से कम 1100 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और वैसे भी अपने वतन में कम से कम अगर हम 313 मरतबा दुरूद पाक रोजाना कम से कम पढ़ लें तो उलमा फरमाते हैं कि जो कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले वो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। 313 बार दुरूद पाक पे कितना वक्त लगता है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद पाक है। मुख्तसर दुरूद पाक अगर कोई सेलेक्ट कर लें और 313 बार कम से कम पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ये मदनी इनाम भी है। तो मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटे मेरे इस्लामी भाइयों, एक बार बगदाद मोहल्ला, जरा तसव्वुर कीजिए उसी शहर में मौजूद हैं जहां का ये वाकया मैं आपको बयान करने जा रहा हूं। यहीं पर एक नौजवान कि जिसने एक नहर के अंदर सेब तैरता हुआ देखा, भूख लगी हुई थी, तमन्ना थी, सेब उठाया और खा लिया। अब ख्याल आया कि मैंने सेब तो खा लिया है मगर किसका है ये मालूम नहीं। क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछ लिया गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं अल्लाह की बारगाह में सेब का हक कैसे बख्शवाऊंगा? अब उस नौजवान ने तलाश करना शुरू किया कि ये सेब आया कहां से है। तलाश करते करते नहर के किनारे चलते चलते एक ऐसे बाग के पास पहुंचा कि जहां सेब के दरख्त थे। उस बाग के जो मालिक थे उनसे जब राब्ता किया तो वो बहुत नेक बुजुर्ग थे, हजरत अब्दुल्ला सौमाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनसे जाकर कहा कि हुजूर गलती हो गई है, आपके बाग का सेब कुछ दूर मैंने खा लिया है, अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर दें। जरा गौर कीजिए, एक सेब की हमारे लिए क्या हैसियत है। आज लोग हजारों लाखों रुपए लोगों के खा जाते हैं, बहुत सारे हुकूक पामाल कर देते हैं, कोई ख्याल भी नहीं करता। कभी कभी हम सब्जी लेने जाते हैं, फ्रूट लेने जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेने जाते हैं, बगैर पूछे उसके यहाँ से कुछ उठा के खा लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। पूछा उससे कभी, इजाजत ली हमने, बगैर इजाजत क्या क्या करते हैं। एक सेब, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाखों करोड़ों की बात नहीं हो रही। वो जो बाग के मालिक थे वो बड़े अल्लाह के वली भी थे। उन्होंने कहा ऐसे तो माफ नहीं होगा, तुम्हें इस बाग की 12 साल तक रखवाली करनी पड़ेगी। 12 घंटे के लिए नहीं, 12 दिन के लिए नहीं, 12 साल तक। उस नौजवान का खौफ खुदा देखें, कहता ठीक है हुजूर, फिर माफ कर देंगे। अगर फिर मेरे अल्लाह की बारगाह में मेरी पेशी नहीं होती है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। वो नौजवान खिदमत करता रहा, बाग की रखवाली करता रहा। जब 12 साल करीब होने आए तो कहा कि अब दूसरा तुम्हारा इम्तिहान ये है, दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। और बेटी वो है जो कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, पैरों से लूली है, हाथ भी नहीं है उसके। इतने सारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, शादी करनी हो तो हमारी तमन्नाएं क्या होती हैं? यकीनन एक जिंदगी में एक तमन्ना होती है कि एक सेहतमंद खूबसूरत ज़ौजा नसीब हो। मगर उस नौजवान का खौफ खुदा देखें कि वो तैयार हो गया कि ठीक है हुजूर, अगर अल्लाह की बारगाह में मुझे जवाब न देना पड़े इस सेब का तो आई एम रेडी, मैं रेडी हूं ऐसी औरत से शादी करने के लिए। निकाह होता है, वो कमरे में जाता है। जब वो नौजवान अपने हुजरे में जाता है तो घबरा कर बाहर आकर हजरत अब्दुल्ला सौमाई जो उस बच्ची के वालिद हैं
ان سے عرض کرتا ہے کہ حضور کچھ غلطی ہو گئی ہے، میرا نکاح تو ہوا ہے مگر میں جس حجرے میں گیا ہوں وہاں جو عورت بیٹھی ہے، لڑکی موجود ہے، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ بھی صحیح ہیں، بولتی بھی ہے اور بڑی خوبصورت بھی ہے۔ اب حضرت عبداللہ صومعی مسکرانے لگے اور فرمایا بیٹا وہی تمہاری زوجہ ہے، اور یہ میری بیٹی جو ہے میں نے اس لیے کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے کہ میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم مرد کو دیکھا نہیں ہے، میری بیٹی ہاتھوں سے بغیر ہاتھ والی اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ کبھی گناہ کے لیے ظلم کے لیے نہیں اٹھے، میری بیٹی پیروں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ کبھی بے پردہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، زبان سے گونگی اس لیے کہا تھا کہ کبھی حرام جھوٹ اور بری باتیں اس کی زبان سے نہیں نکلی ہیں۔ بیٹا اپنی بیٹی کی میں نے بڑی شاندار تربیت کی تھی، مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک خوف خدا والا نوجوان چاہیے تھا، ایک نیک پارسا شخص چاہیے تھا۔ جب تم سیب کا حق بخشوانے آئے مجھے احساس ہو گیا کہ تم ہی میری بیٹی کے لیے رشتہ بن سکتے ہو، میں نے امتحان لیا، 12 سال تمہیں ایک وقت دیا مگر صرف ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے تم نے اتنا لمبا ٹائم مزدوری کی، اور اس کے بعد جب میں نے کہا کہ لولی لنگڑی اندھی بچی سے شادی کرو، اللہ کے خوف کی خاطر تم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ میرے بیٹا وہی تمہاری زوجہ ہے، جاؤ زندگی کے حسین لمحات گزارو۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، سوشل میڈیا پر آج جو مجھے سن رہے ہیں، بغداد معلّہ ہی سے بغداد معلّہ کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جب نیک جوڑے کو ملایا، لڑکی ہو عورت ہو اور ایسی عبادت گزار ہو اور مرد ہو وہ اتنا خوف خدا والا ہو، جب اللہ نے ان کے یہاں اولاد دی تو وہ اولاد کوئی اور نہیں، پیران پیر، پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہو گئے۔ یہ واقعہ کسی اور کا نہیں ہے، جس غوث اعظم کا نام ساری زندگی لیتے رہے اس غوث اعظم کے والدین کا واقعہ ہے۔ یہ والدین کیسے تھے؟ اللہ اکبر۔ غوث پاک کی والدہ کا تو کمال یہ تھا کہ آپ جب غوث پاک آپ کے پیٹ میں تھے، آپ کی والدہ کو جب چھینک آتی وہ الحمدللہ کہتی، غوث پاک ماں کے پیٹ سے ہی یرحمک اللہ کہہ دیا کرتے تھے۔ جب غوث پاک پہلے دن مدرسے پہنچتے ہیں، 4-5 ایئرز کی ایج ہے، قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 4-5 سال کی عمر میں بسم اللہ شریف پڑھ کر قرآن پڑھنا زبانی شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین سے سورہ فاتحہ سنائی، الف لام میم سے پہلا پارا سنا دیا، سیقول الصفحاء سے دوسرا پارا، تلک الرسل سے تیسرا پارا، پڑھتے پڑھتے سیدی غوث اعظم نے زبانی 18 پارے سنا دیے۔ قاری صاحب حیران، شاکڈ، کدھر سے پہلا دن مدرسے میں 18 پارے یاد؟ کہا اور پڑھو۔ کہا استاد صاحب اتنے یاد ہیں۔ کدھر یاد کیے؟ کہا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، ماں تلاوت قرآن کرتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد کر لیے۔ یہ واقعات آپ نے کئی بار سنے ہوں گے مگر میں آج، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، پردے میں اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں آج ایک میسج اس واقعے سے تمام فیملیز کو دینا چاہتا ہوں۔ غوث پاک کے جو نانا جان تھے انہوں نے غوث پاک کے والد میں کیا ڈھونڈا؟ کیا انہوں نے یہ پوچھا بیٹا کتنا کماتے ہو؟ یہ پوچھا کدھر کام کرتے ہو؟ کون سے خاندان سے ہو؟ تمہاری برادری کیا ہے؟ صرف ایک چیز دیکھی تھی کہ یہ نوجوان خوف خدا رکھتا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہا ہے، رب اس کو بھی راضی کر دے گا۔ آج ہم نے شادی کرنی ہے اپنی بچی کی، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ 3-4 چیزیں چیک کی جاتی ہیں۔ لڑکا دکھتا کیسا ہے، کماتا کتنا ہے، خاندان کون سا ہے، کوئی برے کام میں تو نہیں، اور ہمارے نزدیک برے کام کیا ہے؟ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، منشیات تو استعمال نہیں کرتا، کیا کہتے ہیں آپ کے ڈرگز، کوئی ایسی چیز، منشیات سمجھتے ہیں ہندوستان والے؟ ٹھیک ہے، تو اب مثال کے طور پہ ہم ٹھیک ہے منشیات شراب جوا حرام ہے، لیکن یہ صرف یہی چیزیں کیوں چیک کی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اس کو معاشرہ برا سمجھتا ہے۔ خاندان والے کیا کہیں گے؟ شرابی سے شادی کر دی، جواری سے شادی کر دی۔ کس والد نے پوچھا کہ بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ شراب پینا حرام، مگر اس سے بڑا گناہ نماز نہ پڑھنا ہے۔ مگر آج ہم میں سے کون نمازی اولاد، نمازی داماد ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے؟ آج یہ تو پوچھا جاتا ہے کہ کتنا کماتا ہے، کبھی یہ کوشش کی کہ کہاں سے کماتا ہے، کیسے کماتا ہے؟ حرام تو نہیں کماتا۔ یاد رکھو سود کا کاروبار کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ سے جنگ کی ہے۔ جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے وہ اپنی بیٹی اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کیونکہ بڑے پیسے والا ہے نا، بڑا گھر ہے جناب، بڑی گاڑیاں ہیں۔ مجھے بتائیے، آج ایک طرف تو ہم غوث پاک پیران پیر کا نام لیتے ہیں، دوسری طرف جب ہماری
रिश्ते की बारी आती है, हमने ये तो पूछा कि किस खानदान से है, ये पूछा कि वो अल्लाह के नबी के बारे में ख्यालात क्या रखता है, उसके अकायद क्या है, वो सहाबा, अहले बैत अतहार, औलिया किराम के बारे में क्या जानता है। ऐसा भी हमने देखा कि सारी जिंदगी बाप ने अपनी बच्ची को बापर्दा तरबियत दी, घर में 11वीं भी होती रही, घर में 12वीं भी होती रही, घर में औलिया किराम का चर्चा होता रहा, और शादी के बाद ऐसे घर में अपनी बेटी दे दी कि उसका पर्दा भी उतरवा दिया गया और कहने लगे जनाब 11वीं करना तो शिर्क है, नहीं जनाब को मिलाद नहीं मनाया जाएगा। ये बाप ने जुल्म किया अपनी बेटी के साथ कि ऐसी जगह रिश्ता कर दिया कि अब आने वाली नस्लों का अकीदा क्या होगा। ये आपने सोचा? हमने सिर्फ खानदान देखा, हमने सिर्फ माल देखा? नहीं मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, अहादीस में ये मजमून मिलता है, उसकी नाक खाक आलूद हो जो किसी का माल देखकर निकाह करता है, अल्लाह उसे बर्बाद कर दे। आका ने फरमाया दीन देखकर रिश्ते किया करो। और यहां मैं एक और बड़ी अजीब बात करने जा रहा हूं, वो तमाम नौजवान जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उलमा ने किताबों में लिखा कि वो नौजवान जिनकी शादियां नहीं हुई, उन पर अभी से उनकी होने वाली औलाद का एक हक है ना। अजीब बात, शादी हुई नहीं, औलाद का हक। जी, उलमा ने किताबों में लिखा कि उसका हक यह है कि अपनी होने वाली औलाद के लिए अच्छी मां तलाश करे। अभी औलाद नहीं हुई है मगर औलाद होनी तो है ना, और मां पहली दरसगाह है। गौसे पाक की वालदा कुरान पढ़ती थी, अल्लाह ने कैसा मर्तबा दिया कि गौसे पाक पैदा हुए तो 18 पारों के हाफिज थे। आज मां फिल्में देखती है, आज मां बेपर्दा घूम रही है। आपने ऐसी औरत से शादी की है कि जो अकायद दुरुस्त नहीं है, आपके बच्चों की क्या तरबियत होगी। अब आइए इसकी दूसरी तरफ बात समझते हैं। नौजवान भी बैठे हैं, जब किसी जनाब औरत के लिए और लड़की तलाश करनी है तो उसके लिए भी ये देखा जाए कि वो नमाजी है कि नहीं, वो बापर्दा है कि नहीं, उसके अकायद ठीक है कि नहीं। सबसे पहले ये देखा करो पीछे इस्लामी भाइयों, मेरे बुजुर्ग बैठे, जहेज, माल, दौलत, ये जब आपने खुद देखा होगा कि कई मालदार पल में कंगाल हो जाते हैं, और अल्लाह जिन्हें नवाजता है वो कंगाल से मालदार हो जाते हैं। हमें ये देखना है कि जहां हमारा रिश्ता हो रहा है वो अल्लाह को राजी कर रहे हैं। अगर वो रब को राजी करने वाले काम कर रहे हैं, रब उनकी दुनिया अच्छी कर देगा। जो अल्लाह से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अल्लाह को नाराज करने वाले काम कर रहे हैं, उनके साथ रिश्ता करेंगे तो बर्बादी ही मुकद्दर होना है। तो पहले वाक़े से, पहली बात से तो ये सबक हमने हासिल करना है। गौसे पाक अभी 17-18 साल के होते हैं, जीलान में रहते हैं, अपनी वालदा से कहते हैं अम्मी जान मुझे इल्म दीन सीखने बगदाद जाना है। माँ देखो कैसी थी है? आज के दौर में बच्चा मजहब की तरफ आए तो बदकिस्मत माएं, बदकिस्मत वालिद ऐसे भी हैं जो रोकते हैं मौलवी बन जाएगा, फिर यार दुनिया का क्या बनेगा। नहीं मेरे बीच इस्लामी भाइयों, पीरा ने पीर की वालदा कैसी थी, कहती बेटा जाओ, लेकिन अब लगता है तुम्हारी मेरी महशर में ही मुलाकात होगी। आज 3 दिन 12 दिन के मदनी काफिले में जाते में हमारा दिल नहीं लगता। गौसे पाक ने जीलान से बगदाद का सफर अनलिमिटेड किया। माँ को इल्म था कि अब मुलाकात नहीं होनी है, मगर बेटा दे दिया। मगर बेटे को एक जुमला क्या कहा, बेटा हर हाल में सच बोलना। माँ की तरबियत देखो। गौसे पाक बगदाद की तरफ आ रहे हैं, काफिले ने जब आगे सफर शुरू किया, डाकुओं ने इंटरसेप्ट किया, डाकुओं ने हमला कर दिया, तमाम काफिले वालों का सामान छीन लिया। 17-18 साल का नौजवान उनके पास आते हैं। एक डाकुओं का कारिंदा कहता है तुम्हारे पास क्या है नौजवान? कहा मेरे पास 40 दीनार है। अच्छा, दीनार सोने की अशरफी होती, कहाँ है? मेरे कपड़े में सिले हुए हैं। हैरान हो गया, कहता है बेटा हमसे तो लोग पैसे छुपाते हैं, तुम हमें खुद बता रहे हो कहाँ हैं? अपने सरदार के पास आया और कहा कि एक ऐसा नौजवान भी हमारे काफिले में है कि जिसने अपने पैसे भी बता रहा है, किधर छुपाए वो भी बता रहा है। सरदार खुद आया, आकर कहा बेटे कितने पैसे हैं? 40 दीनार है। कहाँ हैं वो? मेरे लिबास में सिले हुए हैं। हमें क्यों बता रहे हो? मुझे ये फिक्र नहीं है मेरे पैसों का क्या होगा, मुझे मेरी मां से किया हुआ वादा याद है कि हर हाल में सच बोलना। अब जरा गौर, मैं एक बड़ी बारीक बात, इस वाकये को पहले भी कई बार सुना है, मगर मैं आज आपको गौसे पाक की सीरत के वाकयात सुनाकर कुछ मैसेज देना चाहता हूं। ये वाकया पहले भी सुना है, मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने डाकुओं को बिठाकर कोई बयान किया था कि डाका छोड़ दो, ये हराम है, ये नाजायज है, तौबा कर लो, तबलीग की थी? नहीं, सिर्फ सच्चे की जबान से एक जुमला निकलना था और वही जुमला तासीर का तीर बनकर डाकुओं के सरदार के दिल में पैवस्त हो गया। वो ज़ारो कितार रोने लगा, कहता है ये नौजवान अपनी मां से किया हुआ वादा नहीं भूला, मैंने रब से किए हुए कितने वादे पामाल कर दिए। रोते रोते उसने तौबा की, अपने सारे जो चेले चपाटे थे उसको जमा किया कि देखो मेरे साथियों, जिंदगी भर डाके मारे हैं, मैंने आज तौबा कर ली है।
सब उसके कारिंदे कहते सरदार आप हमारे लीडर थे, डाकू में भी लीडर थे, अब आपने तौबा की, आज हम सारे तौबा करते हैं। पूरे काफले ने, पूरे डाकुओं के ग्रोह ने तौबा की, सबको माल वापस लौटा दिया। क्या सीखा इस वाक्य से? करामत जरूर है गौसे पाक की, मगर कादरी ने क्या सीखा, गौसे पाक के गुलाम ने क्या सीखा कि हर हाल में सच बोलना है। बदकिस्मती यह है, पहले के जमाने में लोग कहते थे यार बंदा कभी कभी झूठ बोलता है, अब ऐसा लगता है कभी कभी सच बोलते हैं। सारी जिंदगी झूठ बोल के गुजर रही है, हर बात में झूठ, मजाक मजाक में झूठ, हंसाने के लिए झूठ। किसी से पूछो क्या काम करते हो, अगर बेचारा कोई छोटा सा ठेला वगैरह लगा रहा है, कोई छोटा सा कारोबार है, तो अपना बड़ा बताएगा भाई फैक्ट्री लगाता हूं। किधर रहते हो? अब कोई महंगे इलाके में गरीब इलाके में रहता है तो बताएगा महंगे इलाके में रहता हूं। ऑफिस में झूठ, कारोबार में कितने की खरीद है जनाब, इतने की खरीद है। हम क्यों ये करते हैं? हम झूठ बोलकर अल्लाह को किस कदर नाराज कर रहे हैं। हदीस पाक का मजमून है कि बंदा जब एक झूठ बोलता है उसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। अब जिसने इतने झूठ बोले हों हैं, अब फरिश्ते सारे दूर हो गए, रहमत दूर हो गई, तो किधर से बरकत आएगी? लोग मिलते हैं कहते हैं घर में बरकत नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, हर घर में टेंशन है। भाई आप बताएं सच कौन बोल रहा है? हम झूठ बोल बोल कर अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। अच्छा, झूठ के बारे में एक और खूबसूरत बात, सच के बारे में और झूठ की तबाही के बारे में, कि झूठ जो है वो सिर्फ इस्लाम में नापसंदीदा नहीं है, दुनिया के तमाम मजाहिब में और दुनिया की तमाम कौमों में, आप दुनिया में कहीं चले जाएं, दुनिया की तमाम कौमों में झूठ नापसंदीदा है, तमाम मजाहिब में नापसंदीदा है। मगर आज मुसलमान कहलाने वाला धड़ल्ले से झूठ बोलता है। हम हालांकि सच्चे नबी के गुलाम हैं। ऐ कादरियों, गौसे पाक की सीरत से सीखो। आला हजरत लिखते हैं सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, आका सच बोलने वाले, सच की तालीम देने वाले। और नबी पाक का गुलाम झूठ बोले, कारोबार बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए, मजाक करने के लिए, अपना स्टेटस बयान करने के लिए झूठ बोले। सोचिए क्या जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में। अहदीस का मजमून है बंदा सच बोलता रहता है, सच बोलता रहता है, अल्लाह ताला के यहां वो सच्चा लिख दिया जाता है, सिद्दीक लिख दिया जाता है, सच जन्नत की तरफ ले जाता है। और हदीस पाक में आका फरमाते जिसका मजमून है बंदा झूठ बोलता है, झूठ जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है, और इतना झूठ बोलता है कि बारगाह इलाही में कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। सोचिए अगर मेरा नाम अल्लाह की बारगाह में झूठा लिखा हुआ है तो इससे बढ़कर क्या बुराई है मेरे अंदर। आप बाज़ औक़ात असल में होता क्या है, हमें फौरी फायदा नजर आता है और हम उसी फायदे की तरफ चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई जॉब करने वाला अगर यहाँ बैठा है, लेट हो गया ट्रैफिक में, बंबई में वैसे ही बड़ा ट्रैफिक जाम और शहरों में भी बड़ा ट्रैफिक जाम, लेट हो गया जनाब, उठा ही नींद से देर, ऑफिस लेट पहुंचा, तो अब जनाब क्यों आए लेट, तबीयत ठीक नहीं थी, फला बीमार था घर में, है 2 दिन छुट्टी हो गई, तो क्यों भाई छुट्टी की, तो नानी का इंतकाल हो गया। अब सारी जिंदगी याद रखना पड़ेगा कि नानी मर चुकी है उस ऑफिस के अंदर, हालांकि नानी जिंदा है। अब झूठ बोलकर वैसे ही बंदा टेंशन में रहता है। याद रखे झूठा जितना भी होते हैं ना, उनको फाइल संभालनी पड़ती है। इनको मैंने अपना एड्रेस माहिम बताया है, हाँ मैं हालांकि रहता मोहम्मद अली रोड पे हूं, लेकिन बताया माहिम है क्योंकि थोड़ा स्टेटस बताना था, तो अब सारी जिंदगी वही एड्रेस बताना पड़ेगा। तो बाज़ औक़ात इंसान झूठ बोलकर संभालता है, एक झूठ फिर 100 झूठ बुलवाता है। सच बोले, लेट हो गए कोई बात नहीं, किसी मैं देर से उठा था, आपको थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, स्कूल में लेट हो जाए, किसी और चीज में अगर आप परेशान हो, सच बोले। बुजुर्ग बड़ी प्यारी बात कहते हैं, सच को आंच नहीं है, सच बोले इसकी बरकतें पाए। अच्छा एक और खूबसूरत बात, सच्चा जो होता है ना उसके चेहरे बड़े नूरानी होते हैं, सच्चा बड़ा पुरसुकून मिलेगा आपको। कुछ लोग होते हैं कहते हैं टेंशन बड़ी है, नींद ठीक नहीं आती, मैं सोचता बहुत हूं। चेक करें, अगर आपकी झूठ बोलने की आदत है आप बेचैन रहेंगे। जो सच्चा होगा वो पुरसुकून, उसके चेहरे से भी महसूस हो जाता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई कुफार ने, उलमा बैठे हैं, सीरत में लिखा कि कई गैर मुस्लिमों ने नबी पाक की तबलीग नहीं सुनी, आका का पैगाम हक भी नहीं सुना, चेहरा देखकर कहा कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये सच्चे हैं, ये जो कह रहे हैं वो ठीक है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उस नबी के हम गुलाम हैं, उस गौसे पाक के हम मानने वाले हैं, तो हमारी जबान से झूठ क्यों निकलता है? हम समझते हैं झूठ बोल के ही कारोबार होगा जनाब। अच्छा फिर लोग क्या तावील करते हैं, यार हमारी मार्केट में सारे ही झूठ बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, हमारी आइटम ही नहीं बिकेगी। तो किधर गया तुम्हारा तवक्कुल, किधर गया ये जुमला के रोजी देने वाला अल्लाह है? कि झूठ बोलकर ही कारोबार होगा? बल्कि आप अपनी मार्केट को थॉरली देखें, गौर से देखें,
मार्केट में जो सबसे ज्यादा सच बोलने वाला होगा उसका माल महंगे दामों बिक रहा होता है कि यार ये जो बोलता है वही निकलता है इसके अंदर से, बेईमानी नहीं करता, हमें लग रहा होता है माल नहीं बिकेगा। आप अल्लाह पर भरोसा करें, सच बोले, अल्लाह आपके काम में बरकत डाल देगा। आज नियत कर लें इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। और ये जो मजाक में झूठ बोलते हैं ना, कहते हैं मैं तो मजाक ही कर रहा था, मजाक में भी झूठ की इजाजत नहीं है। एक बार बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत खदीजा अल कुबरा, मैं मिस कर रहा हूं कौन सी खातून हमारी उम्मुल मोमिनीन थी, कि किसी बच्चे को बुला रही थी और फरमाया कि आओ मैं तुम्हें कुछ दूंगी है। तो बच्चा जब करीब आया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि आपने क्या देना था? तो फरमाया मुझे कुछ देना था। कहा अगर कुछ न देती तो ये भी झूठ हो जाना था। तो ये बात समझनी है कि बंदा बच्चे को सुलाने के लिए भी झूठ बोल रहे होते हैं। झूठ बोलने की किसी हाल में भी इजाजत नहीं है। अच्छा, बाज़ औक़ात हमें ये भी नहीं पता होता, हम झूठ बुलवाने वाले सवालात कर रहे होते हैं। ये बड़ी अब मैं अहम बात 2-3 जुमले में बताने जा रहा हूं ताकि एहसास हो जाए कि हम कहां झूठ बोल जाते हैं। हमें बाज़ औक़ात लगता है मैं तो झूठ नहीं बोलता। अब मिसाल के तौर पे, मैं पहले भी हिंदुस्तान आया हूं, आप बगदाद आए हैं, किसी के घर पहुंचे, किसी मुल्क में पहुंचे, पहला सवाल, और सुनाए सफर कैसा रहा? अब सफर तो है ही मुश्किल, सफर को हदीस में अजाब का टुकड़ा कहा गया। नहीं जनाब बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। हालांकि थकन से चूर चूर है और बंदा कह रहा है फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक। ये सवाल ही गलत था। ये सवाल अगले को झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है। हमें एहतियात करनी है। बिल्कुल इसी तरह आप किसी के घर गए, उसके घर आराम किया, सुबह उठते ही पहला सवाल, और सुनाए रात नींद कैसी हुई? अब उसको कैसे बताएं कि जनाब बिस्तर नया था, सारी रात करवटें बदलता रहा, उठते कहता है जनाब बड़ी जबरदस्त नींद हुई है। ये सवाल भी गलत, ये जवाब भी गलत। अभी उसके घर खाना खाया, खाना खाते ही पहला सवाल, और हमारे घर का खाना कैसा लगा? ये सवाल बनता ही नहीं है ना। ये अमीर अहले सुन्नत ने ये बारीक बातें हमें बताई कि अब आप सवाल करें। अब मैं कहूं कि जनाब मैं तो चावल खाता ही नहीं था, डॉक्टर ने मना किया, आपने बना दिया, मुझे तो पसंद ही नहीं था, तो उसका दिल टूट जाएगा। और कहूं नहीं जनाब बड़ा पेट भर के खाया, तो ये भी झूठ हो जाएगा। ऐसे सवाल, ये फालतू क्वेश्चंस हैं जो अगले को झूठ पर उभारते हैं। बीमार की इयादत करना सुन्नत है, बड़ा सवाब है, लेकिन हमें वो भी नहीं आती ना। बीमार के पास गए, बंदा हॉस्पिटल में है, ड्रिप लगी हुई है, और भाई कैसे हैं आप, ठीक है? तो बीमार ड्रिप लगा हुआ बैठा हुआ कहता है बिल्कुल ठीक हूं। बिल्कुल ठीक हो तो हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, फिर हम कहते नहीं तुम तो बिल्कुल सेट लग रहे हो, ये भी गलत है। बाकी बीमार है बेचारा, सेट कहते मैं तो उसका दिल रखने के लिए कह रहा हूं। असल दिल रखने के लिए भी जुमले आने चाहिए ना। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह खैर करेगा, घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आपसे कोई पूछे आप कैसे हैं, अल्लाह का हर हाल में शुक्र है। क्यों कहते मैं बिल्कुल ठीक हूं? भाई बीमारी में मुब्तला हूं, जब तो हॉस्पिटल में आके लेटा हुआ हूं। तो ये बहुत सारी बारीक बातें हैं। असल में अमीर अहले सुन्नत जो नारा लगाते हैं ना, वो कमाल का नारा है, पहले तोलो बाद में बोलो। चले आप भी लगा ले, पहले तोलो पहले तोलो। जिस्म में एक ही उज़्व है, एक ही हमारे जिस्म में पार्ट ऑफ द बॉडी है जिसको कवर करने के लिए 32 दांत हैं, इसको रोकने के लिए 32 चौकीदार हैं, मगर हमारी जबान फिर भी नहीं रुकती है, हम फिर भी बोलकर पछताते हैं। एक बड़ा खूबसूरत जुमला है कि आप कई बार बोलकर पछताए होंगे, कभी खामोश रहकर नहीं पछताए होंगे। बोलकर होता है यार क्या बोल दिया यार, ना बोलता तो अच्छा था, नाराज हो गया, झगड़ा हो गया, पार्टनरशिप टूट गई, रिश्तेदारी खत्म हो गई, तलाक भी तो बोलने से होती है ना। लेकिन बोलते वक्त सोचते ही नहीं है। और ये जो खास तौर पे जो गैदरिंग्स के अंदर, दोस्तियों के अंदर झूठ बोला जाता है, मजाक के अंदर, और किसी को बाज़ औक़ात नाम रखते हैं, सताते हैं। ये जबान जो है ना, देखिए कैसे कैसे गुनाह करवाती है। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, कुरान कहता है बुरे नामों से ना पुकारो। और आज किसी को छोटू, किसी को मोटू, किसी को कालू, किसी को लंबा, मजाक उड़ाते हैं दोस्त मिलके। अच्छा, एक दोस्त बैठा होता है वो कुछ कह भी नहीं सकता, मगर क़यामत के दिन अहादीस का मजमून है कि मजाक उड़ाने वालों को क़यामत के दिन जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा, और जब जन्नत के पास जाएगा तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर वो दूर चला जाएगा, फिर उससे बुलाया जाएगा आ जाओ, वो दौड़ता हुआ जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा, फिर बंद कर दिया जाएगा। आज यही करते हैं ना, किसी की चाबी छुपा ली, किसी का मोबाइल छुपा लिया, दोस्तों में तफरीह के लिए तंग करते हैं। अप्रैल फूल आता है तो झूठे कॉल्स करते हैं। ये जबान इसलिए नहीं दी है कि हम किसी को तकलीफ पहुंचाएं, किसी की दिल आजारी करें, किसी की गीबत करें। ए बगदाद मुअल्ला में आने वालों, सीरत गौस से कुछ लेकर जाइए। मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह अपनी जबान को एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। बातें तो बहुत सारी हैं, करामतें भी मुझे बहुत सारी याद आ रही हैं, लेकिन ज़ाहिर वक्त काफी हो गया है। गौसे पाक की एक और खूबसूरत करामत सुनाकर अपने बयान को खत्म करता हूं। एक बार एक खातून ने अपने बच्चे को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास छोड़ा और कहा हुजूर बच्चे की तरबियत कीजिएगा।
कुछ दिनों के बाद अपने बच्चे को देखने गई तो देखा बच्चा बिल्कुल सूख कर कांटा। जो बच्चे से पूछा क्या खाते हो, कहा सूखी रोटी खाता हूं। गौसे पाक की बारगाह माँ थी, जलाल में आ गई कि मेरे बेटे के साथ ये हाल कर दिया। जब सैयदी गौसे पाक के पास गई तो गौसे पाक मुर्गी खा रहे थे। तो कहा मेरे बेटे को सूखी रोटी और खुद मुर्गी खा रहे हैं। जब गौसे पाक खाने से फारिग हुए तो माँ थी का हुजूर मैंने बेटा आपको दिया था, आप खुद तो मुर्गी खा रहे हैं, मेरे बेटे को सूखी रोटी खिलाई, देखे मेरे बेटे का क्या हाल हो गया। तो गौसे पाक ने खाना खा चुके थे, मुर्गी की हड्डियां सामने पड़ी थी। पीरा ने ने उस पर हाथ लगाया तो मुर्गी फिर जिंदा हो गई। फरमाते जब तुम्हारा बेटा इस मकाम पर पहुंच जाएगा तो फिर उसको भी मुर्गी खिला देंगे। इस वाक्य से जहां गौसे पाक का मकाम मिलता है, गौसे पाक के मकाम की तो सच्ची बात है कि दुनिया में, एक बात याद रखिएगा, दुनिया में किसी वली की इतनी करामतें मनकूल नहीं है, इतने कमालात मनकूल नहीं जितनी सीरत सैयदी गौसे आजम की लिखी गई। और गौसे आजम वो मर्तबे वाले वली हैं, उलमाए किराम फरमाते हैं आज भी, जी हाँ सैकड़ों साल गुजर गए, आज भी अगर किसी को विलायत मिलती है तो गौसे पाक के दर से मिलती है। बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। है गौसे पाक की वो करामत कि एक बार एक जो क्या नाम है, एक बादशाह था या एक मुल्क का बड़ा कह ले, नवाब कह ले, उसकी जनाब खैर खाही के लिए जो है जनाब वो बकरे वगैरह या गाय वगैरह भेजी जाती थी और उसके साथ एक शेर होता था। उस शेर को खाने के लिए गोया बकरी वगैरह या जानवर पेश किया जाता था। तो गौसे पाक के शहर में वो आए, वलियों के सरदार के शहर में थे। शेर का बड़ा रोब होता है, मगर मेरे पीर के दर का एक कुत्ता था, वो दौड़ कर गया और उसने शेर को ही चीर फाड़ कर रख दिया। आला हज़रत लिखते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, तुझसे दर दर से सगौर सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सुभान अल्लाह। तो गौसे पाक की बातें करना, उनके कमालात बयान करना, हमारी जिंदगियां थोड़ी पड़ जाएंगी। अल्लाह ने वो मकाम दिया है पीराने पीर को। सैयदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस वाक़े से सीखना क्या है? बाज लोग औलिया किराम को, उलमाए किराम को टेस्ट करते हैं, जरा चेक करें कि जनाब ये किस मर्तबे का है, कोई करामत दिखाता है कि नहीं। कोई ऐसा ट्विस्टेड क्वेश्चन करो, कोई ऐसा सवाल करो कि जनाब पता चले इनकी इल्मियत कितनी है। ये काम हमारा नहीं है, ये बड़ी सख्त बेअदबी है। अल्लाह ने जो इन्हें मकाम दिया है वो अल्लाह की अता है, हमारी औकात ही नहीं कि हम उलमाए किराम को, औलिया किराम को टेस्ट करें। सैयदी आला हजरत ने बड़ा प्यारा वाकया अपनी किताब में लिखा कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि एक बार एक बादशाह था और उसने पता चला कि एक बहुत बड़े पीर साहब आए हुए हैं। तो बादशाह ने दिल में सोचा चलते हैं पीर साहब के पास और जाकर देखते हैं कि पीर साहब कितने पहुंचे हुए हैं। आजकल ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो उसने वो भी वही सोच कर गया। तो पीर साहब के पास बहुत सारे सेब पड़े हुए थे। तो बादशाह कहता है अगर ये सबसे ऊपर वाला लाल वाला सेब उठा के मुझे दे देना तो बस मैं समझ जाऊंगा ये बड़े पहुंचे हुए हैं। आजकल लोग इन्हीं चीजों से पहुंचना समझते हैं ना। और बुजुर्ग ने देखो क्या आला हजरत ने समझाई बात। सैयदी आला हजरत कहते हैं कि उस बादशाह ने सोचा कि ये लाल वाला सेब उठा के मुझे दे देना तो ये अल्लाह के बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी पहुंची हुई शख्सियत है। वो बुजुर्ग कमाल की हस्ती थे, दिल के हाल जानते थे। कहते मैं आप सबको एक वाकया सुनाता हूँ। वो जो बुजुर्ग थे बादशाह को कहते हैं कि मैं आप सबको एक वाकया सुनाता हूँ। वाकया यह है कि हम एक मेले में गए, एक मेला हुआ जिसमें सारे लोग आए और एक गधा था जिसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और सबका सामान मिक्स कर दिया गया। इनका बैग उठाकर इनके आगे रख दिया, इनका बैग उधर रख दिया, इनका सामान उधर रख दिया। अब गधे से कहा गया कि बताओ किसका सामान कौन सा है। आंखों पे पट्टी थी उस गधे की। वो गधा जाता सर के जरिए बताता कि ये बैग इनका है, ये बैग इनका है, ये बैग इनका है। फिर वही लाल वाला सेब उठाया और बादशाह को देकर कहा अगर हम ये सेब तुम्हें न दें तो अल्लाह के वली नहीं है, और अगर दे दें तो उस गधे से बढ़कर कौन सा काम किया है। बात आई समझ में? करतब के पीछे न जाया करो। हम ये देखते हैं कि करामत कौन सी है। इस्तिकामत फौकुल करामत। ये देखो जिस पीर का दामन थामा है, जिस बुजुर्ग का आपने दामन थामा है, उसने मेरे साहबा का दामन थामा है, उसने मेरे गौस का दामन थामा है, उसने नबी पाक की सुन्नतों का दामन थामा है। हमें ऐसी शख्सियात के पीछे जाना है कि जो शरीयत के पाबंद हो। आजकल एक अजीब कॉन्सेप्ट चलाया जाता है, जनाब शरीयत अलग है, तरीकत अलग है। अरे जनाब तरीकत मजबूत होनी चाहिए, शरीयत की कोई हैसियत नहीं। अस्तगफिरुल्लाह
हमेशा याद रखिए, शरीयत का जो पाबंद नहीं वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। आलिम दीन, याद रखिए, ये बड़ा अहम फार्मूला सैयदी आला हजरत ने लिखा, हर आलिम दीन, हर वलीउल्लाह जो अल्लाह का वली होगा वो आलिम दीन होगा। अल्लाह बगैर इल्म के किसी जाहिल को अपना वली नहीं बनाता है। सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह। ये लिखा किताबों में कि अगर किसी ने इल्म दीन हासिल नहीं किया और अल्लाह उसे वली बनाना चाहता है तो अपने करम से पहले इल्म अता फरमाता है, फिर विलायत अता फरमाता है। तो हमें उलमा का दामन थामना है, शरीयत के पाबंद लोगों का दामन थामना है। करतब दिखाने वाले तो जादूगर भी हैं, शोबदाबाज भी हैं। अब जनाब कोई चीज हमें उठाकर दिखा दी, हमने कहा बड़े पहुंचे हुए हैं, उस पहुंचे हुए को देखो वो नमाज किधर पढ़ता है। ऐसी बातें भी आती हैं कि पीर साहब बगदाद में जोहर पढ़ते हैं, मदीने में मगरिब पढ़ते हैं और इशा जनाब करबला में पढ़ते हैं, और लोग उनकी बातों में भी आ जाते हैं। ऐसा ना करें मीठे इस्लामी भाइयों, अपने आप को ऐसे लोगों से वाबस्ता करें जो कुरान और सुन्नत के पाबंद हों, शरीयत के पाबंद हों, और यही हमारे गौसे पाक की तालीमात हैं। अल्लाह मुझे और आपको उलमाए हक की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलना नसीब फरमाए। सैयदी गौसे आजम से हम सबको बड़ी अकीदत है, 11वीं शरीफ बड़ी शौक से बनाते हो, मगर 11वीं मनाने वालों, मेरे पीराने पीर का एक मामूल देख लो। गौसे पाक ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। सोचिए, सुभान अल्लाह तो आपने कह दिया, बड़ी अच्छी बात है, मगर जिस पीर ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर अदा की, उसका मुरीद ना इशा पढ़े ना फजर पढ़े। सोचिए ना, ये कैसी 11वीं है, ये कैसी कादरी है, ये कैसे हम गौसे पाक के मुरीद हैं। अगर मोहब्बत की है गौसे पाक से, दामन थामा है, तो फिर गौसे पाक का नक्शे कदम भी तो अपनाइए ना। आओ आज बगदाद मुअल्ला में नियत करके जाते हैं, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। गौसे पाक 15 साल तक, 15 years कंटिन्यू, आपने रोजाना रात पूरा कुरान पाक खत्म किया, एक रात में एक कुरान। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मुझे नजर आ रहे हैं कई बिजनेसमैन भी हैं, कई इंटेलेक्चुअल्स भी होंगे, पढ़े लिखे लोग भी होंगे, जनाब दुनिया में बड़ा काम किया आपने, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मगर ऐ कादरियों, क्या हमें सही कुरान पढ़ना आता है? पढ़ते कितना ये बात की बात है, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, प्रॉपर मखारिज के साथ। उलमा